Good morning, everyone. Welcome back to the online class. As today we are going to start a new chapter on your demand only. Okay, on your demand, I started a new chapter that is from your new pathways book, and where we are going to start a new chapter that is Grandpa's Tree. Okay, chapter 8 from your new pathways book. Okay. Here some starter is given. What is written? Think of an item you own with fond memories attached to it. Okay. You have to write a thing जो आपके बहुत करीब है. How did you first get it? को ये बताना कि वो जो चीज़ है वो आपको सबसे पहले कैसे मिला. What makes you cherish the object? और आप उस ऑब्जेक्ट को इतना प्यार क्यों करते हो? Why you want to कि वो हमेशा आपके साथ रहे? And how would you feel if you could no longer have it? और आप इस चीज़ के बारे में बताओ कि अगर वो चीज़ जो आपको बहुत प्यारा है, जो आपको मिला है, अगर वो आपके पास ना हो तो how you gonna feel about it? So you have to write this. Okay, discuss with a partner. Fill out the table below. Without instead of sharing it with the partner, I would like if you will share it with me. Okay. So I just want to tell you that you have to write, you have to tell me about the things what is very means किस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्यार रखते हो, वो चीज़ आपको क्यों कैसे मिला और उसको आप क्यों इतना मानते हो, और अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है या आपके पास नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आप पे. ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ मुझे बताना है कि व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली. ओके. Okay, let's start a new chapter. Here we are gonna study about a boy who falls from a tree and hurt himself badly. और वो जो बॉय है वो जब ट्री से गिरा है तो उसको क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है. डू यू थिंक यू शुड ब्लेम द ट्री एंड अलाउ इट टू बी कट डाउन? रीड टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स. ओके, मतलब वो जो ट्री पे चढ़ता था उससे जैसे वो गिरा वो अपने आप को इतना मीन्स hurt कर चुका that he became lame. Okay, lame means वो like he was not able to walk from his leg because उसका जो leg का जो energy जो power है वो lost हो गया उसका. He was unable to walk on his foot. तो what do you think कि ऐसा अगर tree के कारण ऐसा हुआ तो वो उस tree को कटवा देगा? तो I want your answer. Will he allow others to cut down that tree because he fall from that tree and he hurt himself badly? So what do you think what he had done? अगर आपको लगता है yes, then write yes. If it is no, then no. Okay, and we'll find what happened in this chapter. Okay, let's read this chapter and we'll find कि उसने क्या किया after falling down the tree, hurt himself badly, और उसके बाद उसने क्या किया, whether he cut down the tree or not. Okay, let's see this chapter. Eric stared up at the oak tree in front of his yard. His parents told him that his grandfather had planted it 30 years ago. Eric always imagined what that looked like. Thin grandpa leaning over a hole in the ground, a bucket by his side with sapling in it, gently parting the earth for what would one day be the massive tree. Now, गाइज व्हाट हैपेंड, जब एरिक अपने घर के बाहर एक ओक ट्री था, ओक ट्री, ठीक है, एक ट्री है, ओक ट्री उसका नाम है, ठीक है, एंड ही वॉज स्टेयरिंग एट, उसको देख रहा था वो, जस्ट लाइक इन द पिक्चर यू आर सीइंग ना, तो वो उस तरह से वो देख रहा था ओक ट्री को जो उसके घर के बाहर में था. फेंस लाइक वी कैन से जो उसके लॉन में है, जो गार्डन होता है, ठीक है, उसके गार्डन में वो वहाँ पर था. विच वॉज प्लांटेड 30 years बैक बाय हिज ग्रैंडपा. ओके, और एरिक जो है वो हमेशा ये इमेजिन करता था जब ग्रैंडपा इस ट्री को लगा रहे होंगे तो अपने साथ में एक बकेट रखे होंगे, उसमें छोटे छोटे सैपलिंग्स होंगे. सैपलिंग्स मीन्स जब एक छोटा सा प्लांट होता है जिसका सीड रहता है, उसका एक दो पत्ता निकला रहता है, लीव्स निकला रहता है, और उसको अगर हम लोग ज़मीन में ग्राउंड में अगर उसको शोन करते तो धीरे 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 इट विल बिकम अ मैसिव ट्री और अ मैसिव प्लांट. ओके, तो 30 years बैक ग्रैंडपा ने, एरिक के ग्रैंडपा ने उसे शोन किया था, एंड वो इमेजिन कर रहा है कि जब वो लगा रहे होंगे तो कैसा कैसा चीज़ हुआ होगा, है ना. और जैसे जैसे वो
उस ट्री को लगाए होंगे तो वो यही सोचे होंगे कि एक दिन ये बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा. Knowing Grandpa, he would have finished the job neatly, then brought over his lawn chair and sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree grow. और वो क्या करते होंगे, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है, एरिक ऐसा इमेजिन कर रहा है कि दादाजी ने ये किया हो, ये किया होगा, और जब वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा तो ग्रैंडपा क्या किए होंगे, वो ट्री के सामने चेयर लगा के और उस ट्री को देखते होंगे और कहते होंगे क्या कि वाह, मैंने जो ट्री लगाया है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और स्माइल करते होंगे और उसको देखते होंगे बढ़ते हुए, है ना. तो ये इमेजिनेशन था एरिक का कि वो कैसे 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 क्या किए होंगे और उनको कितना खुशी मिलता होगा जब वो ट्री बड़ा हो रहा होगा. Last night, when his mother said they were cutting down the trees, Eric tried to tell his parents that the tree was planted as a sign of Grandpa's love. His mother began to cry. She pointed at Eric's wheelchair and said, "That tree is coming down tomorrow," and ran from the room. Eric's dad just cleared his throat and shrugged. Now, what happened? Just because he fallen down from that tree and he hurt himself badly, mother decided कि इस ट्री को काट के हटाना था is the right thing, okay? लेकिन एरिक ये समझा रहा है अपने पेरेंट्स को कि नो, ये जो ट्री है ये लास्ट साइन है ग्रैंडपा का. आई वोंट लेट इट कट डाउन, ओके? ये ट्री काटना सही नहीं है क्योंकि ये लास्ट साइन है ग्रैंडपा के हमारे आसपास होने का. लेकिन मदर ने ये बात सुना नहीं. मदर ने क्या किया, उसकी मम्मी ने एरिक के व्हील चेयर की तरफ उंगली करते हुए बोली कि नहीं, ये ट्री के कारण ही इसको ये व्हील चेयर मिला है, सो नो, इस ट्री को काट के हटा देंगे तो हमारे दिमाग से ये बात भी हट जाएगा एंड वो उसको देख के हम वो चीज़ याद नहीं कर पाएंगे, है ना. क्योंकि ट्री से कटा है तो ऑब्वियसली बार बार देखेगा तो याद आएगा कि मेरा जो बेटा है वो गिर गया था और वो काफ़ी चोट हो गया कि अब वो चल भी नहीं सकता है. और शी सेड क्या कि टुमारो मॉर्निंग में कौन आने वाला है, टुमारो मॉर्निंग में के पेड़ काटने वाले आने वाले हैं. Dad, Eric said, "It's not tree's fault or grandpa's that I fell out of it. Cutting the tree down will make me feel worse." अगर आप ट्री काट देते हैं वो मुझे और भी बुरा फील करेगा. डोंट कट दैट ट्री बिकॉज दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, है ना. बिकॉज दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन. इट्स नॉट द ट्रीज फॉल्ट और ग्रैंडपा. ये ट्री का फॉल्ट नहीं है, ना ही ग्रैंडपा का कि ग्रैंडपा ने ट्री लगाई. ये किसी का फॉल्ट नहीं है. प्लीज़ इस ट्री को काटिए नहीं. Your mother just doesn't want to have to look at that tree. Try to understand that, his father said. और उसके पापा ने क्या बोला कि नहीं एरिक, यू डोंट अंडरस्टैंड. तुम्हारी मम्मी उस ट्री को देखना नहीं चाहती हैं क्योंकि देख के उनको वही याद आता है कि तुम गिर गए थे और तुम चल नहीं सकते हो अभी. लेकिन ये नहीं हो सकता कि ट्री तो कटेगा बिकॉज योर मदर्स डिसाइडेड दैट. Eric shook his head and wheeled out of the dining room. He didn't understand what good it would to cut down the tree now. Cutting down the tree wouldn't change that he fell from the tree, but it would be one less sign of having grandpa around. अभी एरिक बोल रहा है कि पता नहीं ट्री काटने में कौन सा अच्छी बात है. ट्री काट देने से क्या मैं वापस ठीक हो जाऊंगा या ट्री काटने से कुछ अच्छा हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होगा. लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगा कि ग्रैंडपा के आसपास होने का एक और साइन कम हो जाएगा. साइंस तो काफ़ी हैं लेकिन ये जो साइन है कि ग्रैंडपा ने ट्री लगाया है और जब भी मुझे ग्रैंडपा का याद आता है, आई यूज टू क्लाइम ऑन दैट ट्री. इसमें ट्री की क्या गलती है कि मैं ट्री से गिर गया. लेकिन अगर ट्री को काट देंगे तो ग्रैंडपा का एक और साइन क्या होगा, चला जाएगा क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे लगाया था और मुझे वो बहुत प्यारा है. And Eric didn't want that. Suddenly he knew what he had to do. और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. लेकिन सडनली अचानक उसको ये ध्यान आया कि मैं क्या कर सकता हूँ इस ट्री को बचाने के लिए. He rolled over to the bottom of the tree in his wheelchair and looked up to find the place he usually started to climb. अभी वो फटाफट ग्राउंड में आया जहाँ पे वो ओक ट्री लगा हुआ है एंड वो देख रहा है कि वो जब पहले क्लाइंब करता था तो कैसे करता था. ओके, और वो देख रहा है कि वो जिस चीज़ से क्लाइंब करता था वो वहाँ पर है या नहीं.
It was still there, a peg, in the tree he hammered in a year ago when he started climbing the tree when he missed grandpa. Okay, तो उसने क्या बोला है कि इट इज स्टिल देयर अ पेग. पेग मीन्स क्या होता है? पेग वो होता है, आप लोग देखिए माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए वो कुछ लकड़ी का या प्लास्टिक का लग रहा था जिसको पकड़ पकड़ के आप लोग ऊपर चढ़ सकते हो, है ना. हैंड रखते हो और एक पे फूट रखते हो और धीरे 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 माउंट क्लाइंब करते हो, है ना. वैसे ही उसने अपने ट्री में जब भी उसको ग्रैंडपा का याद आता था वो ट्री पे चढ़ने के लिए वो पेग लगाया हुआ था, लकड़ी का पेग लगाया हुआ था जिसको पकड़ पकड़ के वो ऊपर चढ़ सकता था. But now, instead of it being in a place where he could jump up, it was out of reach. Eric realized he would need a new peg. और जहाँ जहाँ पे वो पेग लगा हुआ था वहाँ तक एरिक पहुँच नहीं सकता था. तो सो ही डिसाइडेड व्हाट, कि यहाँ पर एक नया पेग लगाना होगा तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर चढ़ सकता हूँ. It was his strategy to save that grandpa sign that having the tree, है ना. तो उसका ये स्ट्रैटेजी था किसी तरह से ये मुझे ये ट्री क्या करना है, बचाना है, क्योंकि ये ग्रैंडपा का साइन है एंड आई डोंट वांट टू लूज इट. A half an hour he hammered in a few more peg at lower height. और पेड़ में वो क्या किया, वो जो ओक ट्री था उसके नीचे में 2-3 पेग लगाना शुरू किया नीचे में. As he did this, he planned his route up the tree, realizing that he could climb most of the way up using his arm, the chin ups he would been doing to strengthen his arm would come in handy today. Now what happened? अभी वो सोच रहा है कि ये जो पेग्स है वो नीचे नीचे मैं लगा दूंगा एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू. वो डिसाइड किया कि इस पेग के सहारे रूट अप द ट्री का मतलब है इस पेग के सहारे मैं ट्री पर चढ़ सकता हूँ, है ना. एंड ही थॉट कि मैं बहुत सारा ऐसा तरीका जिससे कि मैं ट्री पे चढ़ सकता हूँ. ही चिन्स अप वो हाथ से पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना, ठीक है. एज टू स्ट्रेंथन हिज आर्म. जब हम लोग अपने आर्म्स को एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो वी यूज़ द हेल्प ऑफ दैट पेग्स और जो भी होता है और उसकी हेल्प से अपने बॉडी को हम खींचते हैं अपने आर्म से और धीरे धीरे हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है. ही चेक्ड हिज वॉच. द ट्री कटर्स वे कमिंग इन एन हाफ आवर. He had to hurry. Tossing the hammer to the ground, Eric reached for the first peg. He felt his body lift out of the wheelchair as he pulled himself off the tree. अभी देखो उसने पेग मारने के बाद क्या किया, ट्री में सबसे नीचे में पेग मारने के बाद ही लुक्ड हिज वॉच में आधा घंटा और बाकी था वो ट्री कटर के आने का. तो ही थॉट कि मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा एंड आफ्टर दैट आई हैव टू रीच अप टू द ट्री एंड आई हैव टू सेव दिस ट्री. उसने क्या किया, वो अपना जो हैमर था, टॉस मीन्स, उसने ज़मीन पे रखा एंड उसके बाद धीरे धीरे वो पेग के सहारे से वो चलना शुरू किया. एंड ही सीन कि वो व्हील चेयर से धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है एंड हिज आर्म्स वो अपने हैंड की हेल्प से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. एंड देन miraculously he was climbing again. मतलब एक चमत्कार हुआ, unexpectedly he started climbing again. Just because without having the legs power he using his hand power and after that he started climbing again. When he reached the peg he used to use his body went into automatic. और जैसे जैसे वो पेग के पास पहुंचा वो धीरे धीरे करते करते वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. उसका जो बॉडी है आर्म्स के पूरे ज़ोर से उसका बॉडी क्या और ऑटोमेटिक ऊपर की ओर बढ़ रहा है. One hand reaching over the other until he pulled himself up most of the way. और धीरे धीरे करते करते एक के बाद पेग के सहारे वो ट्री पर चढ़ गया. Now he stopped and steadied himself. Then he leaned his back against the truck and lifted first his left and then his right leg over and to the correct position to sit. और जैसे ही वो सबसे ऊपर पहुंचा ट्रंक के पास वो अपने हाथ से बैठने की कोशिश किया एंड फिर उसके बाद आराम से ट्रंक पे मीन्स कैसे हम लोग चढ़ते किसी दीवार वगैरह पे, अब सबसे पहले अपने हैंड को रखते हैं और फिर थोड़ा सा झुक जाते हैं ना, और झुकने के बाद अपना लेग रखते हैं, फिर राइट मीन्स लेग रखने के बाद क्या करते हैं, फुल ऑन
जल्दी से लेकर हम लोग बैठ जाते हैं ना, सहारे लेके बैठ जाते, वैसे ही एरिक ने भी सहारा लेके वहाँ पर बैठ के टू एंड करेक्ट पोजीशन में वो बैठ गया इस तरह से, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना, वो किसी भी तरह से मदद से जाके वहाँ पर बैठ गया. It's this big oak tree over here. He heard his mother saying about 15 minutes later. और 15 मिनट के बाद उसकी मदर ने क्या बोला कि देखो ये ओक ट्री है, सबसे बड़ा ओक ट्री. Eric saw her walk beneath him, followed by two men wearing orange t-shirt. और एरिक ने क्या देखा कि नीचे में दो मैन आके खड़े हैं ऑरेंज टी शर्ट में. One of them looked over at the wheelchair. He then peered up into the tree and saw Eric. Eric waved at him. Ma'am, what do you want us to do about him? He asked, pointing up at Eric. और जैसे ही वो दोनों जो ऑरेंज टी शर्ट में जो मैन आए थे, उसने पहले व्हील चेयर को देखा, व्हील चेयर के बाद ट्री पर देखा, ट्री पर एक उन्होंने एरिक को देखा, और उसके बाद मैम जो बुलाई थी उनको पेड़ काटने के लिए, उनसे पूछे कि मैम इस बच्चे का क्या करना है जो ऊपर में बैठा हुआ है. एरिक, मदर लुक्ड अप देन स्टेप्ड बैक. एरिक, हाउ डिड यू गेट अप देयर? हेल्प हिम डाउन. और एरिक की मदर ने क्या बोला कि एरिक तुम ऊपर कैसे पहुँचे, प्लीज़ इसको नीचे उतारो. वो जो दो मैन आए हुए थे ना ऑरेंज टी शर्ट में, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, वो उस मैन को क्या बोल रही कि इस बच्चे को, एरिक को नीचे फटाफट उतारो. And here we finished first part of this chapter. Tomorrow I will complete the half of this chapter, okay? So guys, you can find the word meanings which are new to you, and please find all the things, and don't forget to answer this question that you have to tell me which object you found very close to you and how did you get that, and why you cherish them, and what will feeling after losing that. You have to give this answer, okay? So guys, have a nice day to all. Bye everyone. Tomorrow I will finish the chapter, and later on I will finish the exercise of this chapter, okay? So bye everyone, have a great day.